here in this lecture we will discuss about the amino acid structure. Okay, before going to discuss the structure of these amino acids, make sure to subscribe the channel so that you will get the notification of the next incoming video. So let's talk about the amino acids. Okay, so why we are interested in discussing this topic, amino acids. So amino acids are uh, very important molecules which which are the building block of protein. What are amino acids? These are building block of proteins. Okay, ठीक है. Amino acid polymerize होते हैं to form the structure of these proteins. And proteins, we all know proteins are very important molecules. We are much interested in talking about the proteins, and before going to discuss the protein structure, we have to discuss the amino acid, because the proteins are the amino acids are the building block of the proteins. Amino acid polymerize to form the structure of these protein, and we know the proteins are very important biomolecules. Why I am saying like this? Because proteins are making almost 50% of cellular dry weight. Or if we talk about the macromolecules, for example, we are talking about the macromolecules like nucleic acids like DNA, RNA, and we are talking about the carbohydrates. We are talking about the lipid molecule, and we are talking about the proteins. These are nothing but these are the macromolecules. These molecules all comes under the category of macromolecules. And out of all these different type of macromolecules, proteins are very important, because they are making very much proportion among these macromolecules. अगर हम इनमें परसेंटेज देखें तो सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो हमारे सेल में है, दैट इज ऑफ प्रोटीन. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोटीन्स, एंड दीज आर मच इंटरेस्टेड in talking about the structure of protein. Before we going to discuss the proteins in this lecture, we will start from these amino acids. We will discuss the structure of the amino acids. Okay, so we will discuss here only the amino acids, which are the building block of the proteins. And proteins biomolecules are very important. For example, if we are looking at our body, we are looking at the proteins everywhere. We can see the protein everywhere. For example, we are looking at our hairs, we are looking at our nails, we are looking at our skin. These all cells are made up of the proteins. For example, we are talking about the skin cells. Okay, skin cells, these are made up of keratin protein. These are made up of keratin protein. Okay, we are talking about the skin cells, we are talking about our hair, we are talking about our nails. Okay, we are talking about nails. So the keratin proteins are making our nails, making our hairs, also making our the structure of the skin cells. So these proteins, we can see the proteins everywhere. Okay, for example, we are talking about the bone structure. Okay, so bone structure, in our bone structure we can see the collagen protein, collagen matrix. Okay, that are present inside our bone. Okay, bone, inside our bone, that is present, collagen matrix is present, elastin is present, and elastin is also present in our vascular system. If we talk about the vascular system mean, for example, we are talking about the heart, it is containing also the elastin protein. So the function of the protein biomolecule is much diverse. Okay, almost everywhere the proteins are present. So we are much interested in talking about the proteins. And so proteins, what are proteins are nothing but polymers or of amino acids. Amino acid polymerize with each other to form the structure of these proteins. So let's talk about these amino acids. Okay,
we will discuss the structure of amino acids in very detailed way. Okay, we will start from amino acid. So naturally अगर हम बात करें, naturally 300 amino acids are present. Okay, nature में कितने amino acid हैं? Almost we can say almost 300 amino acids are present. But in this lecture we will discuss only about the 20 amino acids. We will discuss about the 20 amino acid. Why we are discussing only the 20 amino acid? Because these 20 amino acids are known as standard amino acid. What are these? These are standard amino acid. Why these 20 amino acids are known as standard amino acid? Why we are saying like this standard amino acid? The standard amino acid means अगर हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखेंगे, क्योंकि अमीनो एसिड अल्टीमेटली क्या फॉर्म करें, दीज आर फॉर्मिंग प्रोटीन. तो अगर हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, ठीक है, अगर हम कोई भी प्रोटीन आइसोलेट करेंगे तो हमें ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि प्रोटीन्स में ये जो हमारे 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, सिर्फ ये 20 अमीनो एसिड रिपीट में प्रेजेंट होते हैं, रिपीटेडली जो है ये प्रेजेंट होते हैं हमारे प्रोटीन के स्ट्रक्चर में. ठीक है, तो हमें प्रोटीन के स्ट्रक्चर में कितने डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स देखने को मिलते हैं? 20 अमीनो एसिड. ओके, 20 डिफरेंट अमीनो एसिड जो है रिपीटेडली अगर हम आइसोलेट करें किसी प्रोटीन को तो यही रिपीट करके जो है वो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं. इसीलिए हम इनको बोलते हैं स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स. और ये थ्रू दी mRNA एंड राइबोसोमल बायोसिंथेसिस के थ्रू हमें जो है वो प्रेजेंट होते हैं बॉडी में. सो वी आर सेइंग दीज अमीनो एसिड्स आर स्टैंडर्ड अमीनो एसिड. सो हम बाकी रेस्ट ऑफ अमीनो एसिड्स की बात नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे जो प्रोटीन है दे आर मेड अप ऑफ ओनली दीज स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स. और इनका नंबर क्या है? 20. यही जो है रिपीट में प्रेजेंट होते हैं अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में. ठीक है, तो 20 अमीनो एसिड्स आर नोन एज स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स. ओके, अब हम बात करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द अमीनो एसिड्स. हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड लुक लाइक, किस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है, किस तरह से अरेंज रहते हैं मॉलिक्यूल. सो हम एक और चीज यहाँ पे देखेंगे कि हमारे जो अमीनो एसिड हैं, ठीक है, सेंटर में फॉर एग्जांपल कार्बन जो है कंटेनिंग है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, यहाँ पे अमीन ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे कार्बोक्सिल एसिड प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, और इस साइड जो है ये आर हम रिप्रेजेंट करते हैं. Okay, why the word is known as amino acid? Why we say the word like this, amino acid? Amino acid means these are the molecule which are containing amine group. Amino means they are containing this amine group and they are containing the carboxylic group also. So the word is known as amino acid. इस तरह से नेमिंग जो है की गई है. amino acids means they are containing amine group as well as they are containing the carboxylic acid group. So the molecule is known as amino acid. तो यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर हो जाता है. तो स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या देखने को मिलता है? वन इज हाइड्रोजन अटैच्ड विद द कार्बन मॉलिक्यूल. कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है, कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप यहाँ पे अटैच रहते हैं. वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बन के एक जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी वो होगी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ. एक होगा हमारा अमीन ग्रुप. तो यहाँ पे क्या होगा? एक अमीनो ग्रुप होगा, ठीक है, एक हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और एक साइड हमारा आर ग्रुप है, एक साइड हमारा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है. ठीक है, हाइड्रोजन इज अटैच्ड हियर. एंड व्हाट इज आर? आर क्या है? आर इज साइड चेन. ठीक है, ये क्या है? साइड चेन है. ओके, तो हम देखेंगे कि साइड चेन जो है वो किस तरह से, कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं जिसमें अमीनो एसिड में किस तरह की साइड चेन. अब ये जो है स्ट्रक्चर है, वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड इज अटैच्ड विद कार्बन एटम, वन इज हाइड्रोजन, अनदर वन इज अमीनो ग्रुप एंड अदर इज आर. आर मींस साइड चेन. साइड चेन यहाँ पे चेंज होती रहेगी. ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड जो है, ये हमने अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ किया. ये फुली जो है, जो हम 20 अमीनो एसिड में देखेंगे ये सेम रहेगा. रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल इज सेम. बस इस
ये जो साइड चेन है ये चेंज होती रहेगी, ठीक है। बाकी हाइड्रोजन हमें सारे 20 अमीनो एसिड्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच रहेगा, एक साइड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड वन साइड अमीनो ग्रुप, ठीक है। बस ये जो हमारा साइड चेन है ना ये चेंज होगा और इसी के बेस पे जो है हमारे अमीनो एसिड्स की प्रॉपर्टी चेंज करती जाएंगी। जिस तरह से ग्रुप चेंज होगा यहाँ पे तो उसी तरह से उनकी भी प्रॉपर्टीज जो है डिफरेंट डिफरेंट होती जाएंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट अमीनो एसिड से स्टार्ट करेंगे, बहुत ही जिसका सिंपल अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड से हम स्टार्ट करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड को स्टार्ट जो है वो हम राइट डाउन करेंगे। सो सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस आएगा, साइड ग्रुप ही जो है वो डिफरेंशिएट करेगी हमारे अमीनो एसिड्स को। बाकी ये 3 ग्रुप जो है सेम रहेंगे, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ अमीन ग्रुप और एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। और एक और बात कर लेते हैं कि अगर हम इस तरह से, ये नॉन आयनाइज्ड फॉर्म है मॉलिक्यूल की, ठीक है, अमीनो एसिड्स की, बट एक्वस एनवायरनमेंट में या हम अगर अपने फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट की बात करें तो ये हमेशा आयनाइज्ड फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। तो ये कैसे रहेंगे, आयनाइज्ड फॉर्म में रहेंगे। यहाँ पे जो है NH3 पॉजिटिव रहता है और ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड इस तरह से जो है वो शो करता है, तो ये इस तरह से आयनाइज्ड फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। So let's talk about the first amino acid, that is very simple amino acid, glycine। हमने नेमिंग जो है वो सुनी होती है, ग्लाइसिन से हम स्टार्ट करेंगे, ओके। हाँ, एक और यहाँ पे हम स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बोला अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर जब भी हम स्टार्ट करेंगे हम कैसे स्टार्ट करेंगे, कार्बन एटम है, इसके साथ एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच्ड है, एक अमीन मैं इसको NH फॉर्म में लिख रही हूँ, ठीक है। अमीन ग्रुप अटैच्ड है, एक तरफ क्या है R ग्रुप है और एक तरफ क्या है हाइड्रोजन, ठीक है। ये स्टैंडर्ड है, अब इसमें चेंज होगा सिर्फ R ग्रुप में, ठीक है। तो ग्लाइसिन के केस में हम स्टडी करेंगे कि R ग्रुप वहां पे क्या रहता है, ये स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला है अमीनो एसिड का वो है, ठीक है। एक और बात यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, कई बार हम डिस्कस करते हैं कि अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है। तो फर्स्ट अगर हमारा मान लो हमने ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर लिखना है, ये सबसे क्या है, एक तो ग्लाइसिन क्या है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है अमीनो एसिड की, इसका बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है, सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है, ये सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। तो फर्स्ट अमीनो एसिड क्या है, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में जब हम स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर इस तरह से लिख दिया, बट ग्लाइसिन में ये जो R है, ग्लाइसिन अगर हम लिख रहे हैं तो इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, तो इसमें साइड चेन क्या जुड़ा हुआ है, ओनली हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो ये सबसे सिंपल वो है हमारा अमीनो एसिड, ओके। तो कई बार हमारे एक और टर्म इंट्रोड्यूस हो जाती है, यहाँ पे हम बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड, ओके। व्हाट डू यू मीन बाय दिस अमीनो एसिड, अमीनो एसिड तो हमें समझ आता है, बट व्हाट डू यू मीन बाय दिस अल्फा। सो अल्फा अगर हम बात करें तो अल्फा मीन्स कि फॉर एग्जांपल ये हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड है, ओके। इसकी नेक्स्ट जो कार्बन अटैच है इसको बोलेंगे हम अल्फा कार्बन, ठीक है, अल्फा कार्बन। और अगर हमारा अमीन ग्रुप इस अल्फा कार्बन से अटैच है, द अमीनो एसिड इज नोन एज अल्फा अमीनो एसिड। तो ये क्लियर हो गया। अगर हम इस तरह से बोलते हैं कि व्हाट इज अल्फा अमीनो एसिड, तो हमें पता होना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड के जो साथ वाला जो कार्बन एटम है, ठीक है, इसके साथ अगर अमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है देन अमीनो एसिड इज नोन एज अल्फा अमीनो एसिड एंड दिस कार्बन इज नोन एज अल्फा कार्बन, ठीक है, नेक्स्ट टू दिस कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। तो ये क्लियर हो गया कि अल्फा अमीनो एसिड क्या होते हैं। हाँ, एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं ना, प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स में क्या होता है कि हमेशा जो अमीनो एसिड वो होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, अल्फा अमीनो एसिड। किस तरह के जुड़े होते हैं, अल्फा अमीनो एसिड। तो ये हमें माइंड में लेके चलना है कि हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, अल्फा अमीनो एसिड। तो अल्फा हमने समझ लिया, अल्फा अमीनो एसिड का मतलब जो अल्फा कार्बन है इसके साथ अमीन ग्रुप अटैच है, देयरफॉर द अमीनो एसिड नोन एज अल्फा अमीनो एसिड। और हमने फर्स्ट जो हमारा अमीनो एसिड है वो डिस्कस किया है, हम 20 डिफरेंट टाइप के जो अमीनो एसिड वो डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसकी साइड चेन के बेस पे, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज जो है चेंज होती रहती हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट हमने ग्लाइसिन जो है वो डिस्कस किया और ये कैटेगरी हम जो है वो डिफरेंट यहाँ पे स्टडी करेंगे। ये कैटेगरी अगर हम इसको डिनोट कर दें तो ये किस तरह के मॉलिक्यूल्स हम स्टडी करें अमीनो एसिड में भी, ठीक है। तो ये सिंपलेस्ट हैं, बट ये कैसे हैं, नॉन पोलर टाइप के, कैसे हैं, नॉन पोलर हैं या फिर हाइड्रोफोबिक देखेंगे हम, ठीक है। हाइड्रोफोबिक मीन्स दे आर नॉन पोलर। तो इस तरह के जो साइड चेन जिनमें रहेगी तो उनको बोलेंगे हम क्या, नॉन पोलर या हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड। ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें
क्या है, आर ग्रुप एच 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 आता है यहाँ पे, इसीलिए इसको बोला जाता है ग्लाइसिन। तो इसका स्ट्रक्चर तो ऑलमोस्ट याद ही रहता है सबको, यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है आर ग्रुप में, बाकी जो स्ट्रक्चर है वो सेम ही रहेगा सब में, ठीक है। तो ये मैं इरेज कर देती हूँ यहाँ से। तो एक बार फिर से हम ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट हमने क्या डिस्कस किया, जो नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक कैटेगरी में आएगा, फर्स्ट इज हमने ग्लाइसिन जो है वो डिस्कस कर लिया, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर। सेकंड हम डिस्कस करेंगे एलेनिन, ओके। सेकंड वी विल डिस्कस एलेनिन। एलेनिन एलेनिन का स्ट्रक्चर एक बार डिस्कस कर देते हैं। अब क्या है, हमारा जो आर ग्रुप है ना वो कॉम्प्लेक्स होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आर ग्रुप जो है वो CH3 ग्रुप यहाँ पे जुड़ा होता है, ठीक है। तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, हमें पता है कि हमारा अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहेगा, यहाँ पे H रहेगा, इस साइड COO कार्बोक्सिलिक एसिड NH3, ठीक है। अमीन ग्रुप जो है, बस जो इसका आर ग्रुप है यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, CH3 ग्रुप जो है यहाँ पे एडिड है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, आर ग्रुप जब CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है देन इट इज नोन एज एलेनिन। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, एलेनिन। और ये किसके अंडर आ रहा है, नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड। हाइड्रोफोबिक है ऑब्वियसली, यहाँ पे कार्बन चेन जो है वो कॉम्प्लेक्स होती जाएगी, ठीक है। तो ये वाला जो कार्बन चेन है जो आर ग्रुप है ये मोर कॉम्प्लेक्स होता जाएगा नेक्स्ट जब हम अमीनो एसिड। तो इसमें ये CH3 ग्रुप है। थर्ड अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट इज ग्लाइसिन, सेकंड हम एलेनिन की बात कर ली। ग्लाइसिन बहुत ही सिंपल था, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हुआ, CH3 ग्रुप जुड़ गया। अब यहाँ पे आएगा एक और वेलिन की बात कर लेते हैं। वेलिन में क्या होगा, वेलिन में यहाँ पे आर ग्रुप जो है ना, यहाँ पे अगर हम आर ग्रुप की बात करें तो वेलिन के केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH ग्रुप है एंड 2 CH3 ग्रुप अटैच हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हो गया, कार्बन चेन जो है और लॉन्ग हो गई। तो इस तरह से क्या है, मोर हाइड्रोफोबिक होगा और नॉन पोलर टाइप के, इसीलिए इसकी कैटेगरी में आ रहा है। वेलिन हो गया। फोर्थ वन होता है इसमें ल्यूसिन। ल्यूसिन का स्ट्रक्चर भी सेम रहे, सेम नहीं सॉरी, मतलब कार्बन चेन जो है इंक्रीज होती रहेगी, मोर कॉम्प्लेक्स होता रहेगा। आइसोल्यूशन का भी इसी तरह से रहेगा, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स। तो मैंने ल्यूसिन और आइसोलेशन मैंने ड्रॉ नहीं किया, मैंने जस्ट एक आइडिया देना है, ठीक है, कि जो एलिफेटिक या नॉन पोलर या हाइड्रोफोबिक जो अमीनो एसिड हैं वो किस तरह से दिखते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हमें ये सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आने चाहिए, ठीक है। अगर आते हैं देन इट इज वेरी गुड, अगर नहीं आते हैं फिर भी हमें एक आइडिया होना चाहिए कि हमारा मॉलिक्यूल किस तरह से दिखता है, ठीक है। अगर मान लो हमें क्वेश्चन में दे दिए जाता है अमीनो एसिड इस तरह का, तो हमें इतना तो आइडिया होना चाहिए कि अगर कार्बन ग्रुप कंटेनिंग CH3 और इस तरह के ग्रुप जो कि हमारे हाइड्रोफोबिक हैं, कार्बन चेन जो है वो लेंथ उसकी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये किस कैटेगरी में आएंगी, दीज आर अंडर द कैटेगरी ऑफ हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स और नॉन पोलर हैं, जिसमें क्या आता है, सबसे सिंपल ग्लाइसिन है। ग्लाइसिन में तो हाइड्रोजन ही होता है आर ग्रुप, एलिनिन है, वेलिन है, ल्यूसिन है, आइसोलेशन। तो हमें एक आइडिया लग गया कि इनमें क्या होता है, कार्बन चेन ही इंक्रीज हो रही है आर ग्रुप की अगर बात करें, ठीक है। रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल इज सेम। तो हमें अगर मॉलिक्यूल दिया हो तो हम आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है, कि ये किस तरह के अमीनो एसिड हैं, ये किस तरह के हैं, नॉन पोलर एज वेल एज हाइड्रोफोबिक नेचर के, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किए। हम सिर्फ आइडिया इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब हम नेक्स्ट बात करेंगे प्रोटीन्स की या प्रॉपर्टीज की, तो ये जो इनके साइड ग्रुप हैं ये इनकी प्रॉपर्टीज को डिफरेंट डिफरेंट बताएंगे, क्योंकि क्या करेंगे, ये अफेक्ट करेंगे। तो अगर जिनकी जिस तरह की जो है साइड चेन जुड़ा हुआ है उसी तरह की उनकी प्रॉपर्टीज होंगी। तो ये अगर इस तरह से कार्बन चेन जुड़ी हुई है आर ग्रुप में, तो ये किस तरह के मॉलिक्यूल होंगे, और हाइड्रोफोबिक नेचर के या नॉन पोलर टाइप के। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, और वो किस पे डिपेंड कर रही है, आर ग्रुप किस तरह का अटैच है। सेकेंड कैटेगरी की हम बात करते हैं। सेकेंड कैटेगरी में हम बात करेंगे ऐसी कैटेगरी जहां पे अमीनो एसिड के पास क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो जहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा पोलर टाइप के में जो है वो डिफरेंशिएट हो सकते हैं अमीनो एसिड, ठीक है। तो कैसे अमीनो एसिड की बात करेंगे, जिनके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल आते हैं सीरीन फॉर एग्जाम्पल। सेकेंड मॉलिक्यूल आता है यहाँ पे थ्रियोनिन, ठीक है, थ्रियोनिन, एंड थर्ड इज टायरोसिन, ओके, टायरोसिन। तो
जब भी बात करेंगे तो हम मान लो हमारे पास सीरीन दिया हुआ है, बेशक हमें ड्रॉ नहीं आता है करने, बट हाँ हमारे माइंड में ये चीज होनी चाहिए कि सीरीन, थ्रेओनीन एंड टायरोसिन दीज आर कंटेनिंग द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये किस में आ जाएंगे, ऐसे अमीनो एसिड जिनके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। तो अब एक बार हम ड्रॉ भी कर लेते हैं, हर एक मॉलिक्यूल का मैं ड्रॉ नहीं करूंगी, ठीक है, ये हम जो है रेफरेंस बुक से भी देख सकते हैं, बट मुझे यहाँ पे मेन मेरा पर्पस है चीजों को क्लियर करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, CH2 OH and CH NH3 and this is carboxylic ग्रुप। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, R ग्रुप यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन चेन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, साथ में हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इस तरह का अगर कोई मॉलिक्यूल है जिसमें आर ग्रुप में क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो हम क्या बोलेंगे, यस दीज अमीनो एसिड आर अंडर द कैटेगरी ऑफ अमीनो एसिड विच आर कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ओके, और कितने टाइप के हैं, सीरीन है, थ्रियोनिन है एंड टायरोसिन है। तो ये जब मॉलिक्यूल होंगे तो हमें माइंड में रखना है कि दीज आर हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग, ठीक है। तो हमें साइड चेन जो है वो पता होनी चाहिए कि कौन से मॉलिक्यूल की किस तरह की होती है, तभी हम उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो बता सकते हैं कि अमीनो एसिड किस तरह के हैं और वो प्रोटीन किस तरह का होगा, ठीक है, वो अमीनो एसिड पे ही डिपेंड करेगा। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ऐसे अमीनो एसिड्स, ठीक है, अमीनो एसिड में सल्फर ग्रुप भी होता है कई बार, ठीक है, सल्फर ग्रुप। तो ऐसे अमीनो एसिड जिनके पास सल्फर ग्रुप है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड आते हैं, जैसे इसमें आता है एक सिस्टीन, ठीक है, सिस्टीन आ गया, या हमारा मिथियोनिन हो गया, ठीक है, सिस्टीन एंड मिथियोनिन। ज्यादा नहीं तो हमें इस तरह से याद रखना है कि कौन कौन से मॉलिक्यूल जो है किसके अंडर आ रहे हैं। तो सिस्टीन और मिथोनिन अगर हमें राइट डाउन कर दें तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि ये कैसे अमीनो एसिड है जिनकी साइड चेन में सल्फर ग्रुप अटैच रहेगा, ठीक है। तो एक मैं यहाँ पे ड्रॉ भी कर देती हूँ मॉलिक्यूल, जैसे CH2 है, इसके साथ ये सल्फर कंटेनिंग ग्रुप है, थायोल ग्रुप बोलते हैं इसको, ठीक है, थायल ग्रुप। बाकी मॉलिक्यूल सेम ही रहता है, जैसे कार्बन के साथ हाइड्रोजन, इधर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, अमीन ग्रुप अटैच होगा, बस हम इसको डिफरेंशिएट करके ही 20 डिफरेंट अमीनो एसिड लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, CH2 ग्रुप के साथ थायोल ग्रुप की एडिशन हुई है, थायोल ग्रुप बोल देते हैं इसको। थायोल ग्रुप मीन्स कि दीज आर कंटेनिंग दी सल्फर ग्रुप। तो इस तरह के मॉलिक्यूल जो होंगे, ठीक है, वो किसकी कैटेगरी के अंडर आएंगे, जिनके पास सल्फर ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये अमीनो एसिड हो गए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, ये क्या करते हैं, सल्फाइड बॉन्ड भी बनाते हैं, ठीक है, सल्फाइड बॉन्ड। जब दो सिस्टीन अमीनो एसिड जुड़ेंगे आपस में, ठीक है, तो ये सल्फर सल्फर ग्रुप जो क्या करेंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी बना सकते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के बॉन्ड होते हैं, ठीक है, वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर में हम स्टडी करेंगे। तो कौन से मॉलिक्यूल सल्फाइड बॉन्ड बनाते हैं, सिस्टीन एंड मिथियोनिन, ठीक है। एक ये हो गए। फोर्थ कैटेगरी जो है हम डिस्कस करेंगे, फोर्थ कैटेगरी हम ऐसे डिस्कस करेंगे जो एसिडिक ग्रुप है, ठीक है, कि कैसे अमीनो एसिड है, एसिडिक अमीनो एसिड, ठीक है। अब एसिडिक क्यों बोला जा रहा है अमीनो एसिड्स को, ये यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो कौन सी कैटेगरी हम डिस्कस करते हैं, फोर्थ, एसिडिक अमीनो एसिड, ठीक है, ये हम डिस्कस करते हैं। और इनके अमाइड भी होते हैं, ठीक है, अमाइड ग्रुप, अमाइड फॉर्म भी इन्हीं की होती है एसिडिक अमीनो एसिड्स की। जैसे फॉर एग्जांपल एसिडिक ग्रुप में हम एस्पार्टिक एसिड की बात करते हैं, एस्पार्टिक एसिड हो गया, ठीक है, एंड देन ग्लूटामिक एसिड हो गया, ग्लूटामिक एसिड। ये कैसे हैं, ये किस टाइप के हैं, एसिडिक अमीनो एसिड की कैटेगरी में आ रहे हैं, ठीक है। एसिडिक क्यों बोला जा रहा है, ये हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर से जो है वो यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो मैं एस्पार्टिक एसिड का यहाँ पे जो है वो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ। जैसे CH है, इसके साथ हमें पता है COO, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमीन ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पे रेस्ट ऑफ मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे डिफरेंस है, ये एक तो यहाँ पे CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसके साथ अगर अगेन हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसी वजह से अमीनो एसिड इज नोन एज एसिडिक अमीनो एसिड। एसिडिक क्यों बोल रहे हैं हम, ठीक है। तो अगर तो हम वैसे स्टैंडर्ड अमीनो एसिड में देखें तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है अल्फा कार्बन के साथ इस साइड तो सारे अमीनो एसिड में अटैच्ड है, ठीक है। बट अगर हमारा यहाँ पे मान लो ये अल्फा कार्बन है तो ये बीटा आ जाएगा, तो अगर बीटा कार्बन के साथ भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, देन द अमीनो एसिड इज नोन एज एसिडिक अमीनो एसिड, ठीक है। अगर
इसको मैं हटा दूं तो वैसे अल्फा कार्बन के साथ तो हमारा ऑलवेज कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा, एक एमीन ग्रुप रहेगा। बट अगर अल्फा कार्बन के अलावा किसी और कार्बन पे, फॉर एग्जांपल बीटा कार्बन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड हुआ है, देन अमीनो एसिड विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ दिस एसिडिक अमीनो एसिड। तो ये क्लियर हो गया कि वाई द अमीनो एसिड नोन एज एसिडिक अमीनो एसिड, क्योंकि यहाँ पे एक और एसिडिक ग्रुप जुड़ा हुआ है अदर देन अल्फा कार्बन, दैट इज नोन एज बीटा कार्बन। ओके, सो इस तरह से होता है। एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड में भी एसिड ग्रुप जुड़ा होगा, ठीक है। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे एस्पार्टिक एसिड का जो है वो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। अब हमने एसिडिक ग्रुप की बात कर ली। एक होते हैं अमाइड ग्रुप, ठीक है। अमाइड में क्या होता है, एस्पैरजिन, ग्लूटामिन, वो भी इन्हीं से डिराइव होते हैं, ठीक है। अमाइड ग्रुप क्या बोला जाता है उन्हें, उनको बोलते हैं अमाइड्स, ठीक है। फिफ्थ कैटेगरी हम जो है वो डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज बेसिक अमीनो एसिड। ये तो थे एसिडिक अमीनो एसिड, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बेसिक अमीनो एसिड्स। बेसिक अमीनो एसिड्स में आ जाएंगे हमारे, फॉर एग्जांपल हमारे लाइसिन आ गया, ठीक है। और क्या होता है, आर्जिनिन हो गया, आर्जिनिन हो गया, हिस्टिडीन हो गया, ये सारे किस में आ जाते हैं, बेसिक अमीनो एसिड। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, लाइसिन का डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मतलब इसमें कार्बन चेन लॉन्ग है, तो मेरे को केयरफुली यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हम सबको पता है, यहाँ पे अमाइड ग्रुप है, ठीक है। रेस्ट ऑफ जो इसका आर ग्रुप है दैट इज डिफरेंट। तो ये जो ये कार्बन होगी अल्फा, ठीक है। तो इस तरह से नेमिंग कर लेते हैं, CH2, यहाँ पे एक और ग्रुप जुड़ा हुआ है CH2 एंड CH2, दैट इज अल्फा, इट इज बीटा, इट इज गामा एंड इट इज ईटा, ठीक है, ईटा, सॉरी इट इज डेल्टा, इट इज डेल्टा। तो ये नेमिंग है, मतलब कार्बन जो लेंथ जो है ना वो यहाँ पे धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है। तो इसी तरह से अल्फा, फर्स्ट को तो अल्फा दे देते हैं, यहाँ में क्लियर है। तो नेक्स्ट जब इंक्रीज करेगी तो उसको दे देंगे बीटा, गामा, ये डेल्टा एंड देन इट इज ईटा। ओके, ईटा। तो ईटा कार्बन के ऊपर अगर हमारा नेक्स्ट अमीन ग्रुप फिर से यहाँ पे अटैच है, तो हमें पता है एसिडिक में देखा हमने एक और जो है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच था बीटा कार्बन के ऊपर। अब लाइसिन का स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक अमीनो एसिड क्यों बोल रहे हैं, बेसिक मींस अमीन एसिड अगर एक तो अल्फा कार्बन पे तो सब में जो है वो अटैच रहता है, बट अल्फा कार्बन के अलावा भी जो है अगर अमीन ग्रुप अटैच है देन दी अमीनो एसिड इज नोन एज बेसिक अमीनो एसिड। जैसे यहाँ पे कौन सी कार्बन एटम पे जुड़ा हुआ है, ईटा कार्बन, तो जो लाइसिन का मॉलिक्यूल है उसमें एक एडिशन में और अमीन ग्रुप जुड़ा होता है एट द कार्बन नंबर ईटा, and therefore the amino acid will come under the category of basic amino acid। तो ये समझ आ गया why the amino acid known as acidic and why amino acid is known as basic amino acid। तो ये हमने 5 कैटेगरी जो है वो एमिनो एसिड की यहाँ पे डिस्कस की हैं। नेक्स्ट हम एक और कैटेगरी डिस्कस करेंगे, दैट इज एरोमेटिक अमीनो एसिड। Okay, these are also very important amino acid, aromatic amino acids। Okay, sixth category is aromatic amino acids। Aromatic amino acid, what do you mean by this aromatic amino acid? Aromatic amino acid means कि यहाँ पे क्या होगा, एक रिंग स्ट्रक्चर जो है वो जुड़ा होगा, आर ग्रुप जो है यहाँ पे रिंग टाइप स्ट्रक्चर जो है वो जुड़ा होगा हमारे अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में। तो एक बार हम देख लेते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल आते हैं। फॉर एग्जांपल फिनाइलिन, फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन, ठीक है। एक ये अमीनो एसिड हो गया, एक टायरोसिन हो गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोनों ही, ठीक है। तो एरोमेटिक अमीनो एसिड फिनाइल एलानिन, तो यहाँ से हमें समझ आ रहा है फिनाइल एलानिन के नेम से ही फिनाइल ग्रुप, फिनाइल क्या है, एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर जो है वो ऐड हुआ है हमारे अमीनो एसिड में। तो एक तो है अमीनो एसिड का ये स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर वही रहेगा सारे अमीनो एसिड्स में, ठीक है। बस इसमें क्या है, आर ग्रुप में क्या जुड़ा हुआ है, आर ग्रुप में फिनाइल ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एक रिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये रिंग है, ठीक है। इस तरह से ये रिंग स्ट्रक्चर है। तो ये इस तरह का जब स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा हमारा
आर ग्रुप किससे रिप्लेस, आर ग्रुप में यहाँ पे क्या है, एक रिंग स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है, दैट इज फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है स्ट्रक्चर में अमीनो एसिड के। तो ये किस तरह के अमीनो एसिड है, एरोमेटिक। एरोमेटिक मीन्स जहाँ पे रिंग स्ट्रक्चर जुड़े हुए हैं, ठीक है। फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन में फिनाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच है, दैट इज नोन एज फिनाइल एलेनिन। तो टायरोसिन में भी क्या है, इसी तरह का एक जो है वो रिंग स्ट्रक्चर जुड़ा होता है। ये रिंग स्ट्रक्चर जुड़ा होगा, मैं जो है सारा मॉलिक्यूल ड्रॉ नहीं कर रही। रिंग स्ट्रक्चर में हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे अटैच रहता है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है फिनॉल ग्रुप। तो जहां फिनॉल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसको बोला जाता है टायरोसिन मॉलिक्यूल। तो बेसिकली मेरा आइडिया ये था कि जहां भी रिंग स्ट्रक्चर है तो किस कैटेगरी में आते हैं, एरोमेटिक, और कौन कौन से अमीनो एसिड हैं, जैसे फिनाइल एलिनिन हो गया और टायरोसिन। तो ये किस तरह के अमीनो एसिड हैं, दीज आर एरोमेटिक अमीनो एसिड। नेक्स्ट कैटेगरी हम डिस्कस करेंगे लास्ट, ठीक है। तो लास्ट कैटेगरी में हम डिस्कस करेंगे अपना प्रोलीन, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोलीन। और ये डिफरेंट भी है बाकी अमीनो एसिड से, ठीक है। प्रोलीन का स्ट्रक्चर हम देखेंगे। प्रोलीन जो है वो बाकी अमीनो एसिड से, ये मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। तो इसमें भी रिंग आता है, बट ये रिंग भी डिफरेंट है, ठीक है। रिंग तो है बट इसका स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है बाकी सारे अमीनो एसिड से भी, ठीक है। तो प्रोलीन को हमने याद रखना है कि किस तरह का स्ट्रक्चर है। ये कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे NH ग्रुप है। अब हम एक और चीज देखें कि स्टैंडर्ड अमीनो एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो होता है, बट यहाँ पे क्या होता है, अमीन ग्रुप, ठीक है। NH3 ग्रुप जुड़ा होता है, या NH2 जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे NH2 नहीं है, यहाँ पे NH ग्रुप है, और इस NH ग्रुप को बोलते हैं इमीनो ग्रुप। तो ये क्या है, इमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अमीनो नहीं है, नॉट एमिनो ग्रुप, अमीनो नहीं है। अमीनो मीन्स NH2 ग्रुप जब जुड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, NH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे इमीनो ग्रुप। तो ये बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रक्चर है अगर हम वैसे देखें अमीनो एसिड में। अदरवाइज अमीनो एसिड में यहाँ पे NH2 जुड़ा होता है, यहाँ पे CO नेगेटिव ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पे क्या है, सिर्फ NH ग्रुप है, जिसको हम बोलते हैं इमीनो ग्रुप। तो हमने देख लिया प्रोलीन का स्ट्रक्चर, एक तो रिंग स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है और साथ में इसमें अमीन ग्रुप की जगह क्या है, इमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो हमारे ये कितने अमीनो एसिड हैं, 20, जिनकी कैटेगरी हमने डिफरेंट देख ली, ठीक है। और कैटेगरी किस बेस पे की गई है, उनकी साइड चेन के बेस पे। साइड चेन जो है, कई बार पोलर टाइप के अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग, या फिर जो है कार्बन चेन जुड़ी हुई है, ठीक है। जैसे एलेनिन वेलेनिन हो गए, विलाइन हो गया, एलेनिन हो गया, ग्लाइसिन तो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ल्यूसिन हो गया, आइसोलेशन, ये सारे किसमें आते हैं, हाइड्रोफोबिक टाइप के अमीनो एसिड। देन हमारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग आते हैं, उसके बाद सल्फर कंटेनिंग भी हैं, ठीक है। फिर हमारे रिंग स्ट्रक्चर कंटेनिंग है, जिनको एरोमेटिक बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट में हमने एक और एसिडिक और बेसिक भी हमने डिस्कस किए। और लास्ट में हमने प्रोलीन का स्ट्रक्चर देखा। प्रोलीन में क्या है, एक इमीनो ग्रुप जो है वो अटैच रहता है इंस्टेड ऑफ अमीनो ग्रुप। तो ये डिफरेंट टाइप के 20 अमीनो एसिड हैं। ये हमें जरूरी नहीं है कि हमें पूरा जो है वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आने चाहिए, बट हाँ हमें इतना आइडिया लगना चाहिए कि हमें अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर अगर दिया है तो हमें ये पता होना चाहिए कौन सा अमीनो एसिड है और किस कैटेगरी के अंडर आ रहा है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत हमें हेल्प करेगा जब हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट द अमीनो एसिड्स।